A very good morning to all from Anurag Joshi. In today's video, we are covering the OOPS concept, that is constructor. Constructor in C++. So, what is a constructor? Constructor is a special type of member function that is automatically called itself whenever we created the object of a class. Okay, so suppose you create a class of name man. Okay, and in that class, if you create a constructor, okay, and in main function, when we create object of that class man, and suppose I created that object m, what it means? It means that now when created object, the compiler automatically created a constructor, okay, and it generates some value. Okay, so it is a constructor. So what is its syntax? Here the syntax of constructor is that here is your class name. Okay, in that class you have created anything that is related to that class name is called your constructor. But you have to know three things about a constructor. That first, the name of the constructor is the same as our class name. Okay, the second one is it doesn't return any value. Okay, and the third, the constructor is always created inside the public access modifier. Okay, it's clear. Now, suppose if I have to create a constructor, what we have to do? First of all, suppose I have created a class and the name of that class is Anurag. Okay, in that class, we know that in a class we have three things that are access modifiers, data members and member functions. So, first of all, I have to write that access modifier public. Okay, in that, if I create a constructor, what we have to do? We have to create a constructor with the same name as the class name. So if I write Anurag and that function, it means I have created a constructor here. Okay, this is our constructor. How do we know that? Because you can see that the name of class and the name of that function is same. So it indicates that this is our constructor. Okay, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इसको अपन ने डिक्लेयर तो कर दिया, ये हमारा कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन है. नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू वी कैन डिफाइन द कंस्ट्रक्टर. We have defined our constructor by two ways. Okay, you have to define inside that class also and outside the class also. So you have to know that if you want to create, you have to declare that outside the class, you have to write the class name, then access modifier and your constructor name. Okay, so for that you have to write Anurag, then scope resolution operator and the name of your constructor. Okay, this is the way to declare our constructor. Okay, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी. तो अब एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं ये कैसे वर्क करता है. ओके, चलिए. So when we want to create a program, we have to include the header files that are iostream.h and the second one is connew.h. Okay, after that we have to create a class. So if I create a class with name anything, जैसे मैंने लिख दिया अनुराग. ओके, अब इस क्लास के अंदर मैंने क्या लिखा? पब्लिक. इस पब्लिक के अंदर मैंने लिख दिया अनुराग. यहाँ पे मैंने क्या करा, एक इंटीजर i इज इक्वल्स टू 10 लिख दिया. ठीक है,
और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ सी आउट वैल्यू ऑफ आई इज आई। ओके, इस फंक्शन को मैं क्लोज कर देता हूँ और इस क्लास को भी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, इस क्लास के अंदर ही इस कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन पार्ट बना दिया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्लास बन गई। अब हम सेकंड हमारा काम क्या होता है, हमें एक मेन फंक्शन बनाना होता है। तो मैं यहाँ पे मेन फंक्शन बना देता हूँ। मेन फंक्शन, और हमें पता है जब हम मेन फंक्शन बनाते हैं, जब तक हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे क्लास का नाम है जैसे ANURA, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करना होता है, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, आप कुछ भी लिख दीजिए। अगर मैं लिख देता हूँ जैसे A, तो अब A क्या बन गया, मेरे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है ना। तो अगर नॉर्मल फंक्शन होता तो अगर आपको उसको कॉल करवाना होता तो आप क्या करते थे, A.अनुराग या जो भी आपका फंक्शन का नाम था वो लिखते। बट इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव नथिंग टू डू विथ दैट। जब जैसे ही आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया तो इससे आपका क्या हुआ, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ यहाँ पे गेट ch फंक्शन लिख दीजिए, रिटर्न 0, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या करा है, इंट टाइप का मेन फंक्शन लिया। इससे अपन रिटर्न क्या करेंगे, वैल्यू, क्योंकि अगर आप रिटर्न नहीं लिखते हो तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू दे देगा। ठीक है, चलिए, और आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो इससे आपके पास ऑटोमेटिकली जो आउटपुट जनरेट होगा उसके अंदर आपको आई की वैल्यू जो है वो 10 इनिशियलाइज होकर आ जाएगी। ठीक है ना। ये होता है आपका कंस्ट्रक्टर, कि आपको कंस्ट्रक्टर जब भी आप यूज़ करते हो तो आपको सिर्फ जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को वो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। ठीक है ना। तो ये एक तरह का मेंबर फंक्शन ही है, बट ये स्पेशल मेंबर फंक्शन है। मेंबर फंक्शन किसको कहते हैं, हमें पता है कि अगर मैं क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन बना देता हूँ तो मेंबर फंक्शन कहलाता है। उसी तरह अगर क्लास के अंदर मैंने सेम नेम का एक फंक्शन बना दिया तो क्या कहलाएगा, हमारा कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। सेकंड इज टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। There are 3 types of constructor that are default constructor, second is parameterized constructor, and the third is copy constructor. Okay. ठीक है ना। 3 तरह के हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हो उसके पैरेंथेसिस के अंदर आप कुछ भी नहीं लिखते हो, वो आपका क्या कहलाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब जिसके पैरामीटर, नो आर्गुमेंट्स नो पैरामीटर्स। ओके, ऐसा जो भी कंस्ट्रक्टर होता है वो आपका क्या कहलाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। सपोज अगर मैंने जो अभी आपके सामने एक प्रोग्राम बनाया था, मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया था अनुराग, और इस पैरेंथेसिस के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहलाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ठीक है। सेकंड होता है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि समझिए मेरे पास जो कंस्ट्रक्टर है, अब यहाँ पे इसके अंदर मैं कुछ पैरामीटर्स पास करवा दूँ। जैसे अगर समझ लीजिए मैं यहाँ पे इंट x इंट y लिख देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 2 पैरामीटर्स पास करवा दिए। अब उनको आपको एक्सेस करना है और यूज़ करना है, तो वो आपका क्या हो गया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। थर्ड इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। अगर आपको कोई एक कंस्ट्रक्टर पहले से क्रिएटेड हो रखा है, अगर आपको उसका एक कॉपी बनाना है, उसका एक रिप्लिका बनाना होता है, वो आपका क्या कहलाता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। उसको लिखने का तरीका बहुत ईजी है। आपका जो कंस्ट्रक्टर का नाम है आपको वो लिख देना है, फिर एम्परसेंड का साइन लगा के आपका जो, ये तो आपका न्यू कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, ये ओल्ड कंस्ट्रक्टर जिसकी आप कॉपी बनाना चाहते हो वो लिखना है आपको। ओके, ये होते हैं आपके 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। इनके ऊपर प्रोग्रामिंग हम कोड ब्लॉक्स और टर्बो सी के अंदर करेंगे, जिससे हमें इजीली समझ में आएगा। ओके, अगर आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।